Today we will discuss about English alphabet, sentences, words in this online class. बच्चों, जैसा कि आप ग्रामर में आप जानते हैं, अल्फाबेट अर्थात लेटर के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। आज हम आप लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट, वर्ड एंड सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जानकारी देंगे। अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स or symbols that we use to represent the basic speech sounds of a language in writing. The English word alphabet comes from the Latin word alphabetum. The Latin word alphabetum come from the first two letters of the Greek alphabet, alpha and beta. Next, letter of the English alphabet. The English alphabet has 26 letters with A and starting with A and ending Z. Below you see the whole alphabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These 26 letters called English alphabet. The letters above are small letters, but they can also be written as large letters. The letters of the alphabet are also sometimes called characters. Small and large letters, we can write each letter of English alphabet as a small letter ABC and as a large letter ABC, which are seen on this scale. Large letters are also called capital letters or capitals. Now you see the whole alphabet with small letters on left and capital letters on right. Here first small alphabet letters, second capital letters. In informal English, we sometimes call capitals just caps. What is alphabetical order? बच्चों, प्रश्न कभी कभी आप लोगों को हमेशा आता है, दिए गए write in alphabetical order to given words. तो इसमें what is alphabetical order? The English alphabets start with the letter A and finished with the letter Z. We always write the alphabet in the same order. Here, this order shown here. This order is called alphabetical order. Here capital or small, both letters wrote in alphabetical order. If more than one words begin with the same letter,
we put them in order based on second letter and then the third letter. बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते समय हम A to Z के ऑर्डर में ही हम वर्ड को लिखते हैं, जैसा कि आपको यहां दिया गया है। यदि वर्ड में सेम लेटर, यदि एक से अधिक है वर्ड में सेम लेटर, तो हम सेकेंड लेटर, इसके बाद थर्ड लेटर को हम देखते हैं। इफ more than one words begin with the same letter, we put them in order based on the second letter and then the third letter. बच्चों, यदि एक से अधिक वर्ड दिए गए हैं जो जिसमें सेम लेटर है, तो हम उसके सेकेंड या थर्ड को हम देखते हैं। उसके क्रम में हम जो पहले आता है उसको हम लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यहाँ यदि हम इस तरह से देखते हैं, जैसे हम कम और केम, COME कम और CAME केम, यहाँ हम देखते हैं दोनों में C है, लेकिन C के बाद अब सेकेंड लेटर में चलते हैं तो केम, CAME केम A जो है, और यहाँ सेकेंड लेटर CO आ गया। तो और A और O, अब C को हम नहीं लेंगे, A और O को देखेंगे। A और O में फर्स्ट क्या है? A है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? केम, इसके बाद क्या आएगा? कम। तो ऐसे ही हम ध्यान देते हैं, यदि इफ मोर देन वन वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर, वी पुट देम इन द ऑर्डर बेस्ड ऑन द सेकेंड लेटर एंड देन थर्ड लेटर। Font styles. Printed letters of the alphabet come in different styles or designs. Each style is called a font. Letters are units of word, which for words. Now, next point, words. In English language, there are 26 letters, kinds of letters. Here, vowel A, E, I, O, U. These 5 letters are called as vowels. Means any of the sound represented in English by the letter A, E, I, O, U means vowel. Consonant. Rest of all 21 letters B, C, D, E, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z means 21 letters called as consonant. You can say any of the letters of English alphabet except A, E, I, O, U is consonant. Here, semi-vowel. बच्चों, W और Y letters इंग्लिश में हम इनको सेमी वावेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? When WY letters of English when between word or at the end of the word, both called as vowel. But WY letter of the English when beginning of the word, both called are consonant. So W and Y are called semi-vowel. बच्चों, यदि W और Y वर्ड के बीच में हो, यानी वर्ड के अंदर हो या लास्ट में रहता है, तो हम इसे वावेल के रूप में इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और यदि यह
बिगिनिंग वर्ड रहता है, वर्ड के बिगिनिंग में रहता है, स्टार्टिंग वर्ड लेटर रहता है, फर्स्ट लेटर रहता है, तो हम इसको हम कॉन्सोनेंट के रूप में इसका हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसा बच्चों आपको यहाँ एग्जांपल हम दिखाते हैं कि WY लेटर्स, यानी समटाइम्स WI act as consonant and sometimes WI acts as vowel. Example: word, week, week. In 3 words, W beginning of the word. So here consonant, year, youth. In both word, beginning of the word. Why beginning of the word? Means consonant, but here crow, now, narrow, W end of the word means vowel. Gay, try, country. In this word, Y end of the word, so Y vowels. Even though these word begins with H, a consonant, when you pronounce them, the H is silent. बच्चों, हम देखते हैं कभी कभी H कॉन्सोनेंट है, लेकिन कभी कभी हम इनका प्रोनाउंस करते समय H को हम साइलेंट करते हैं, अर्थात उसे हम वावेल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे ऑनर, हियर H साइलेंट, ऑनर, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, HOUR और मीन्स H इज साइलेंट। जबकि हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ H क्या है? कॉन्सोनेंट। हियर वर्ड्स बिगिन विथ H, कॉन्सोनेंट, बट in pronunciation the H is silent. Honor, honest, or. Next, now come to the word. Word is the basic unit of the language. Words can be classified according to their action and meaning, but it is challenging to define. A word refers to a speech, sound, or mixture of 2 or more speech sound in both written or verbal form of the language. A word works as a symbol of the represent, refer to something, someone in language to communicate a specific meaning. Example: love, cricket, sky, etc. A word is the smallest unit of the grammar that can stand alone as a complete utterance, separated by spaces in written language and potentially by pauses in speech. बच्चों, जब भी हम वर्ड लिखते हैं तो वर्ड का, 2 वर्ड के बीच में हम एक लेटर की जो जगह होती है हम उतना गैप रखते हैं, अर्थात सेपरेट बाय स्पेस, और वर्ड को हम ऑलवेज पोटेंशियली बाय पॉसेज इन स्पीच, अर्थात बोलते समय हम वर्ड के बीच में थोड़ा सा हम रुकते हैं। मॉर्फोलॉजी यदि हम देखते हैं, जो शब्द विज्ञान के आधार पर हम उसको देखते हैं, तो अ ब्रांच ऑफ
linguistic study of the formation of words. The branch of linguistics that studies in the meaning of word is called lexical semantics. मीन्स बच्चों शब्द विज्ञान जिस तरह से हम हर विज्ञान का भूगोल का हम अध्ययन करते हैं, वैसे हम मॉर्फोलॉजी में हम शब्द का अध्ययन करते हैं. देयर आर सेवरल क्राइटेरिया ऑफ फॉर अ स्पीच साउंड or a combination of some speech sound to be called a word. There must be a potential process in speech and the space in written form between two words. First point है बच्चों, जैसा कि हमने बताया, if there are several criteria for a speech sound or a combination of some speech sound to be called a word, here there must be a potential pause in the speech and the space in written form between two words. For instance, suppose ball and bat are two different words. So if we use them in the sentence, we must have a potential pause after the pronouncing each of them. जिसको हम आगे आपको दिखा रहे हैं बच्चों. इट कैन नॉट बी लाइक हियर आई डू नॉट प्ले विथ बैट बॉल. हम देख रहे हैं बच्चों, यहां आई डू नॉट प्ले विथ बैट बॉल, ये जो सेपरेट वर्ड्स हैं, लेकिन विदाउट गैप लिखने की से हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है. इफ यू विल टेक पॉज, दिस साउंड कैन बी रिगार्डेड एज सेवन डिस्टिंक्ट वर्ड which are I do not play with bat and ball. So every word must contain at least one root. If you break this root, it cannot be a word anymore. For example, the word unfaithful has a root faith. If you break faith into fa, this sound will not be regarded as word. बच्चों, जैसे कोई वर्ड है, जो बड़े वर्ड्स हैं उनमें फैथ शब्द है, या जो उसका फैथ शब्द उनका रूट है, अर्थात फैथ से अनफैथफुल वर्ड बना हुआ है, फैथ से में फुल ऐड किया तो फैथफुल हो गया. और यदि इसमें हम अन शब्द को हमने जोड़ दिया तो हो गया अनफैथफुल. प्रीफिक्स और सफिक्स, फैथ में हमने सफिक्स किया तो फैथफुल हो गया, और प्रीफिक्स अन को जोड़ दिया तो अनफैथफुल हुआ. जबकि फैथ शब्द क्या है? रूट है, वर्ड ऑफ रूट. मीन्स यदि हम फैथ को अलग अलग पढ़ते हैं तो हम इस वर्ड का साउंड जो है बराबर हम नहीं पढ़ पाते हैं, अर्थात दिस साउंड विल नॉट बी रिगार्डेड एज वर्ड. नेक्स्ट, नाउ every word must have a meaning. For example, the sound लखना has no meaning in the English language. जैसा कि बच्चों ने बताया कि हमेशा वर्ड की एक मीनिंग होती है, उसका एक अर्थ होता है. तो यहां हम देख रहे हैं जो साउंड लखना लिखा गया है, इसका इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है. सो इट कैन नॉट बी अ इंग्लिश वर्ड बिकॉज एवरी वर्ड मस्ट हैव अ मीनिंग, बट लखना हैज नो मीनिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंस. A sentence is the largest unit of any language, a group of words which makes complete sense is called sentence.
In English, it begins with a capital letter and end with a full stop or a question mark or an exclamation mark. So the sentence is generally defined as a word or a group of words that express a true idea by giving a statement, order, or asking a question or exclaiming. So, example, he is a good boy. This is a statement. Is he a good boy? This is question. What is nice weather? This sentence is exclaiming, means exclaiming statement and question. So the sentence is generally defined as a word or a group of words that express a thorough idea by giving a statement, order, or asking a question, or exclaiming. Next, ideally, a sentence required at least one subject and one verb. Sometimes the subject of a sentence can be hidden, but the verb must be visible and present in the sentence. Word is called the heart of a sentence. Example, here, do it. In this sentence, a subject you is hidden, but verb do is visible. बच्चों हम देख रहे हैं do it means तुम इसे करो. यहाँ हम देखते हैं you शब्द जो सब्जेक्ट है वो क्या है, छिपा हुआ है. You is hidden, but verb do. Do क्या है, क्रिया है, वर्ब है करना. Do is visible, जिसे हम क्या है, visible means उनको हम यहाँ शो हो रहा है. तो इस तरह से जैसा कि हमने बताया बच्चों कि verb is the call the heart of sentence. Sometimes subject of the sentence can be hidden, but the verb must be visible and present in the sentence. Now next, a sentence is a group of words usually containing a verb that express a thought in the form of statement, question, instructions, and exclamation, and start with a capital letter when written. Means, in other words, a complete English sentence must have three characteristics. Here, first one, it written form a sentence begin with a capital letter and end with a period, that is a full stop, a note of, and a note of interrogation, that is a question mark, or a note of exclamation, that is an exclamation mark. And second, it must express a complete thought, non-fragmented. Third one, it must contain at least one subject, hidden, visible, and one verb comprising an independent clause. बच्चों जैसा कि अभी हमने बताया कि जो सेंटेंस होता है उसको लिखते समय वह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. A sentence begins with the capital letter, end with full stop, or a note of interrogation, or note of exclamation. सेंटेंस शुरू तो होता है कैपिटल लेटर से, हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और अंत किससे होता है, या तो फुल स्टॉप लगा होता है, या क्वेश्चन मार्क लगा होता है, या
एक्सक्लेमेशन, यानी यह जो 3 पंक्चुएशन मार्क है, इन तीनों पंक्चुएशन मार्क का उपयोग सेंटेंस के एंड में होता है, लेकिन हमेशा फर्स्ट जो है बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट नॉट फ्रेगमेंट, मतलब सेंटेंस हमेशा कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, चाहे वह सब्जेक्ट उसमें छिपा हो या दिखाई देता हो, उसमें सब्जेक्ट कम से कम एक होना ही चाहिए। वन वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लास, क्लास मीन्स होता है उपवाक्य, अर्थात बच्चों एक वर्ब होना चाहिए जो स्वतंत्र क्लास में हो। इंडिपेंडेंट क्लास कंटेन अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी एंड वर्ब क्रिया, एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, मतलब जो आप कहना चाहते हैं वह उसको पूरा उसको एक्सप्रेस करे, स्पष्ट करे। तो यह जो बच्चों, यह हमें 3 पॉइंट मिला। आगे हम आपको चलते हैं तो सेंटेंस की जानकारी देते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चरली सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, complex sentence and compound complex sentence. Simple sentence, a simple sentence must have a single clause, means a single verb which is independent and it cannot take another clause. तो बच्चों जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके लिए हमने बताया कि उसमें सिंगल क्लास होता है। क्लास क्या होता है बच्चों, यहाँ क्लास शब्द आया है तो आपको क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। उपवाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है बच्चों जो किसी वाक्य का भाग होता है और इसमें अपना सब्जेक्ट या वर्ब होता है, इसे हम कहते हैं क्लॉज यानी उपवाक्य। तो इस तरह से बच्चों सिंपल सेंटेंस की जानकारी हुई। एग्जांपल, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, यहाँ वन क्लॉज है, वन वर्ब है, देख रहे हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव more than one independent clause. Compound sentence must have more than one independent clause. With no independent clauses, some specific conjunctions, punctuations, or both are used to join together these clauses. मतलब उसमें बच्चों कंजक्शन का उपयोग से या पंक्चुएशन से का उपयोग से हम उसे अलग करते हैं, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन वन इंडिपेंडेंस क्लॉज होता है, अर्थात वाक्य जो है एक से अधिक होते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, इट ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, नेक्स्ट है वी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, और हम देख रहे हैं बच्चों एंड शब्द है, अर्थात जो कंजक्शन है उससे क्या क्या हम इसको जोड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर 2 वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देते हैं बच्चों, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आल्सो हैज मोर देन वन क्लॉज बट one of them must be independent clauses and other must be a dependent clause. There are also some particular connectors for the clauses of the complex sentence to be connected. For example, I know that you always wanted to be a writer. यहाँ बच्चों देख रहे हैं dependent clause is followed by the connectors and one independent clause
द अदर वे अराउंड इज आल्सो पॉसिबल। हम देख रहे बच्चों, आई नो यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। तो इस तरह से ये भी क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ डिपेंडेंट क्लास है जो कनेक्टर बाई कनेक्टर उसे ज्वाइन हुआ है, और साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लास से। तो आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, कंपाउंड complex sentence. A compound complex sentence or complex compound sentence is a mixture of the feature of compound and the complex sentence in one sentence. So it must contain at least two dependent clauses and at least one. So it must contain at least two independent classes and at least one dependent classes. तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो यहाँ हम देख रहे हैं क्लासेस में, तो इस तरह से जो कंपाउंड सेंटेंस में है यह मिक्सचर ऑफ फीचर ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन वन सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का दोनों का एक में ही हम देख रहे हैं, ऐसे फीचर मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल में हम देखते हैं, तो आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। यहां हम देख रहे हैं बच्चों, वन डिपेंडेंट क्लास है is followed by a complex connector and two dependent classes with a compound conjunction between them. Here conjunction means but शब्द का यूज किया गया है। तो I know that you always wanted to become a writer, I always wanted to become a doctor, दोनों में हम but शब्द का यूज किया गया है, अर्थात जिससे हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों का यहाँ फीचर है, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं, फंक्शनली सेंटेंसेस आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स। उधर स्ट्रक्चरली था बच्चों, या क्या है, फंक्शनली हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंपरेटिव सेंटेंस, third interrogative sentence and fourth exclamatory sentence। तो फर्स्ट चलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, एंड assertive sentence are declarative sentence simplify, express an opinion, feeling or make a statement or describe things in order, it declare something एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इस तरह से हम या बच्चों देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में फीलिंग, स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब थिंग्स। हियर टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन विथ पीरियड, अर्थात फुल स्टॉप से, जिसका बच्चों जिसमें फुल स्टॉप से होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम देखते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में बच्चों आपको हम बताना चाहते हैं कि ऐसे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है, ऐसे हम सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या इसे हम विधि सूचक, हिंदी में क्या कहते हैं, विधि सूचक, अर्थात अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ही इज गोइंग टू अ स्कूल, दे विल कम सून। हियर आई वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर, दिस इज अ स्टेटमेंट। बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे,
This is feeling. Imperative sentence. We use an imperative sentence to make a request or to give a command. Imperative sentences usually end with a period, that is full stop. जैसा कि बच्चों ने बताया कि इसके पहले जो assertive sentence था उसका भी एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही imperative sentence में भी हम क्या करते हैं, imperative मतलब प्रश्नवाचक। यहाँ हम देख रहे हैं, सॉरी, imperative मीन्स आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हम जिस वाक्य का आज्ञा, अनुरोध, सलाह का भाव प्रकट हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहां हम देख रहे हैं ऐसे इंपरेटिव और एसर्टिव में हम लास्ट में इंड विथ फुल स्टॉप, अर्थात सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से उसका एंड रहता है। जैसा कि हम एग्जांपल देख रहे हैं, प्लीज सिट डाउन, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ। बट प्लीज सिट डाउन में हम देख रहे हैं बच्चों, सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, लेकिन आई नीड यू टू सिट रहे हैं कि आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ। यहां लास्ट में हम देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, जबकि बच्चों अभी हमने बताया कि जिस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध व सलाह का भाव प्रकट होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य में प्रायः सब्जेक्ट छिपा रहता है तथा वाक्य में कभी कभी डोंट से शुरू करते हैं, जैसे सिंग अ सॉन्ग, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां हम देखते हैं सिंग अ सॉन्ग, प्लीज सिट डाउन, यहाँ सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। बच्चों डोंट गो देयर मीन्स, जैसा कि हमने बताया कि वाक्य कभी कभी डोंट से शुरू होते हैं, तो वी यूज अ इंपरेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट or to give a command. Imperative sentences usually end with a period, that is a full stop, अर्थात लास्ट में फुल स्टॉप से इसे हम समाप्त करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि assertive और imperative सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। assertive सेंटेंस में प्रायः सब्जेक्ट से शुरू होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य होता है, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट छिपा होता है। या हम देख रहे हैं प्लीज सिट डाउन, अर्थात यहाँ यू छिपा हुआ है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते बच्चों कि हमेशा सेंटेंस क्वेश्चन, अर्थात जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का बच्चों, WS टाइप, अर्थात हम देख रहे हैं आगे आपको बता रहे हैं कि an interrogative sentence asks a question, interrogative sentence must end with note of interrogation। हमेशा रखे तो बच्चों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। अभी जैसे हमने बताया कि assertive और imperative में फुल स्टॉप लगा होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। when you are going to submit your assignment, यहाँ यह जो है WS टाइप क्वेश्चन है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, WS टाइप या WS से शुरू होने वाला, दूसरा यस नो टाइप जिसको हम वर्बल बोलते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है बच्चों, इज, एम, आर
डू, डज, हैव है, विल, शैल से शुरू होता है। जैसे हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, डू यू नो हिम, यह जो है इसका आंसर यस या नो में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप, या इसका दूसरा नाम है वर्बल टाइप क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे मुख्य चीज है बच्चों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विथ अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses overflow of emotions. These emotions can be of happiness, wonder, sorrow, anger, etc. बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेशन में जिस वाक्य में मन का हर्ष, विवाद, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि की जैसे अभिव्यक्त होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों ऐसे वाक्य प्रायः हाउ, व्हाट, सच, ओ आदि से शुरू होते हैं। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ, व्हाट, सच, ओ आदि से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य में लास्ट में हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। कोई भी वाक्य नेगेटिव या अफर्मेटिव हो सकता है। अगर स्वीकारात्मक अभिव्यक्त हो तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, नकारात्मक अभिव्यक्त होता है तो इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन बच्चों याद रहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मस्ट एंड विथ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका एग्जांपल बच्चों हम देख रहे हैं, व्हाट अ डे इट वाज। व्हाट अ डे इट वाज हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि हाउ, व्हाट, सच, ओ आज से शुरू होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों, यह आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट, यहाँ हम देखते हैं लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो यह एक्सक्लेमेशन ही। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। बच्चों जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि केवल 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम ऐच्छिक वाक्य कहते हैं। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसे होता है, यानी जिस वाक्य में आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव प्रकट होता है जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या ऐच्छिक वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग, प्लेयर, क्रो, कर्स और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस प्राय में से शुरू होता है बच्चों। इसके वाक्य में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य रहता है। कभी कभी वाक्य में छिपा रहता है, फिर भी भाव परिवर्तित नहीं होता है। यदि हम देखते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं बच्चों कि इसके एग्जाम्पल में हम मे यू लिव लॉन्ग, या हम देख रहे हैं बच्चों मे यू लिव लॉन्ग में हम यदि हम देखें तो मे गॉड हेल्प यू, मे ही गॉड सक्सेस, मे गॉड सेव द किंग। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं यह सेंटेंस मोस्टली ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हम देखते हैं बच्चों, इसका नीचे आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विद द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग,
सेकेंड देखते हैं, मे गॉड हेल्प यू। थर्ड, मे ही गॉड सक्सेस। लेकिन लास्ट में हम देख रहे हैं बच्चों, जिस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यह एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है, वैसे ही बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यह हम देख रहे हैं में हिडन है, जैसा कि हमने बताया कि कभी कभी वाक्य में छिपा रहता है, जबकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में यही डिफरेंस है बच्चों। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमेशा में शब्द जरूर मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है जबकि में छिपा होता है, लेकिन फिर भी उसका भाव परिवर्तित नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम आपको अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली हमने आपको जानकारी दिया। इस तरह से यह ऑनलाइन क्लास आज यहाँ समाप्त होता है। आप इसे सुनिए, जहां डाउट होता है फिर वापस इसको वीडियो को। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।